Good morning, dear students of class 8th B. You remember we had started the lesson of mineral resources in my last class, and I sent you the video concerning it, and I also sent you my explanation on it. And in continuation of this chapter today, that day we were dealing with the classification of minerals. And I had told you that the minerals, on the basis of their origin, they are classified. First is metallic content. So based on the metallic contents, we can divide these metals into three parts. If metal is there, they will be metallic minerals. If metal is not there, they will be non-metallic minerals. And there are certain metals which are helpful in providing energy, like coal and petroleum. So they are called energy minerals. So metallic minerals, that day also I told you, they consist of metals like gold, silver, this iron, copper. They are all metals, so they are metallic minerals. Then non-metallic minerals, minerals which do not contain metals, are known as non-metallic minerals. So examples of them are nitrate, potash, granites, limestone, etc. Right? And energy minerals, as I told you, these originate from the plant. They are organic in nature, and they originate also from animal remains, but they produce heat and energy, and hence they are also called as fuels, or in other words we call them as energy minerals. So these metallic minerals, they are further divided into three parts. Ferrous means, the word ferrum is used in science for iron. So ferrous means they contain iron. Non-ferrous means they do not contain iron. And third type is प्रेशियस का मतलब हम क्या जानते हैं? प्रेशियस मिनरल्स मतलब कीमती, है ना, कीमती धातु, जैसे गोल्ड हो गया, प्लेटिनम हो गया. सो वी आर स्टडीइंग फर्दर अबाउट देम. सो दीज मेटेलिक मिनरल्स आर फर्दर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ कंटेंट ऑफ आयरन, है ना. मेटल में भी अब क्या है कि आयरन होगा, मिलावट होगी आयरन की, तो उसको फेरस मिनरल बोलेंगे. मिनरल्स विच हैव आयरन कंटेंट आर नोन एज फेरस मिनरल्स. उसमें कौन कौन से आ गए? आयरन हो गया, कोबाल्ट, निकल, है ना. तो देखो आयरन का एग्जाम्पल भी आपको यहाँ पर दिया है, कोबाल्ट का दिया है, आयरन और उसका मैंने दे दिया पहले. और निकल आप जानते होंगे, दिस इज़ निकल, है ना. निकल के कॉइन्स बनते हैं, जैसे हमारे जितने भी कॉइन्स हैं, दीज कॉइन्स आर मिंटेड, दे आर प्रिपेयर्ड, सो दिस निकल is there. Then they are basically used in iron and steel industries. तो ये सारे फेरस मिनरल्स किस में यूज़ होते हैं? आयरन और स्टील इंडस्ट्री में. और इनका कलर यूजुअली कैसा होता है? ग्रेइश इन कलर. नॉन फेरस मिनरल्स, मेटल्स विच डू नॉट हैव आयरन कंटेंट, आर रिफर्ड टू एज नॉन फेरस. जिसके अंदर आयरन नहीं है, जैसे टिन हो गया, है ना. टिन का डब्बा हम देखते हैं, हमारे घरों में भी होता है. बॉक्साइट हो गया. Bauxite is also an ore of aluminium, as you know, bauxite. So they are found in all types of rocks. They are all non-ferrous. मतलब इसमें आयरन नहीं है, लेकिन टिन है या बॉक्साइट है, एल्यूमिनियम है, ये सब non-ferrous, non-iron हो गए. फिर precious minerals. These are metallic minerals which are very precious. Example gold, silver. Gold, silver तो आप जानते हो. Platinum. Platinum is also very precious and used in ornaments nowadays, है ना. This is the example of platinum mineral. So these come under precious minerals, under metallic minerals. Further in the chapter it has been given about extraction of minerals. Extraction का मतलब क्या होता है? Extract करना, मतलब जमीन से minerals को कैसे निकालते हैं. तो मिनरल्स आर फाउंड इन रॉक्स. मिनरल्स कहाँ मिलते हैं? रॉक्स के अंदर. द प्रोसेस ऑफ टेकिंग आउट मिनरल्स फ्रॉम रॉक्स बरीड अंडर द अर्थ सरफेस इज कॉल्ड माइनिंग. तो उनको निकालने का तरीका क्या होता है? माइनिंग, है ना. माइंस मतलब खदानें होती हैं, और खदानों से इनको खोद करके एक्सट्रैक्ट किया जाता है, निकाला जाता है. मिनरल्स दैट लाई नियर द सरफेस आर सिंपली डग आउट. अब ऊपर ही अगर कुछ मिनरल्स मिल रहे हैं तो उनको सिंपली क्या करेंगे? डिग आउट करेंगे, है ना, खुदाई करेंगे. उस सिंपल खुदाई को बोलते हैं क्वारीइंग. जैसे यहाँ पर भी आप देख रहे हो, क्वारीइंग ऑफ स्टोन्स, है ना. ऊपर ही स्टोन्स में है तो उसको क्वारीइंग बोलेंगे. दोज दैट लाई एट शैलो डेप्थ्स आर रिमूव्ड बाय मेथड नोन एज ओपन कास्ट माइनिंग. अब ओपन कास्ट माइनिंग का मतलब क्या है? आप जैसे इस पिक्चर में भी देख रहे हो, शैलो मतलब
थोड़ा गहरा, है ना। और शैलो और डीप ये दो वर्ड्स हैं। शैलो मतलब हल्का गहरा, हल्की गहराई पर अगर मिनरल्स हैं तो इस तरह से एक ओपन कास्ट ले लिया जाता है, उसके अंदर माइनिंग करके उसको ओपन कास्ट माइनिंग बोलेंगे, उसको निकाल लिया जाता है। टू रीच मिनरल डिपॉजिट्स दैट लाई एट ग्रेट डेप्थ्स, अब बहुत गहराई में है तो उसको तो ओपन कास्ट से नहीं निकाल सकते, तो उसके लिए क्या चाहिए, डीप बोर्स कॉल्ड शाफ्ट्स हैव टू बी मेड। अब इस तरह की एक शाफ्ट बना दी और ये गहराई तक जाएगा अंदर ज़मीन से, और इसको हम फिर बोलते हैं दिस इज़ कॉल्ड शाफ्ट माइनिंग, है ना। शाफ्ट की मदद से माइनिंग होती है। इस तरह का एक शाफ्ट होता है जो ज़मीन में डीप डिगिंग के माइनिंग के काम आता है। एंड टू एक्सट्रैक्ट एनर्जी फ्यूल लाइक पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, डीप वेल्स आर बोर्ड, दिस इज़ कॉल्ड ड्रिलिंग। ठीक है, उसका आपको ड्रिलिंग का भी एक पिक्चर उसमें मैंने आपके रेफरेंस के लिए दे रखा है। अब गहराई में मान लीजिए कोई ओशियन एरिया है, वहाँ पर अगर हमको ऑयल या ऐसी कोई पेट्रोलियम ऐसी चीज़ एक्सट्रैक्ट करनी है तो उसके लिए ड्रिल करके ड्रिलिंग मशीन्स लगाई जाती हैं और ऐसे ड्रिलिंग के मेथड से उसको एक्सट्रैक्ट किया जाता है, तो उसको हम ड्रिलिंग कहते हैं। सो दीज आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ माइनिंग स्ट्रैटेजीज, सो दैट you should be knowing all this terminology well, which has been given also in the form of a flow chart. Extraction of minerals, it is done through mining, through drilling and through quarrying. So these are the three methods: mining, drilling एंड क्वारिंग, राइट। सो माइनिंग आपने समझ लिया, ड्रिलिंग समझ लिया, क्वारिंग मतलब ऊपर ऊपर से निकालना है ना। शैलो एरिया है, शैलो डेप्थ है। ड्रिलिंग मतलब डीप है और पेट्रोलियम जैसा प्रोडक्ट है, ऑयल है ना, उसके लिए ड्रिलिंग यूज़ होगा। माइनिंग ओवरऑल एक कॉन्सेप्ट हो जाता है माइनिंग करके खदान। अब खदान में भी क्या होता है, एक ओपन कास्ट और एक शाफ्ट माइनिंग। ओपन कास्ट मतलब नज़दीक के एरिया में, और शाफ्ट माइनिंग मतलब बहुत गहरे एरिया से हमको अगर मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट करना है तो ये प्रोसीजर यूज़ करते हैं। नाउ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल्स अकर इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ रॉक्स, इन इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स। मेटेलिक मिनरल्स में अकर इन द क्रैक्स, रिवाइसेस, फाउल्स और जॉइंट्स। अब इग्नियस रॉक्स जो आपको बताए थे, जैसे हमारे माउंट आबू के पहाड़ हैं, है ना, इग्नियस या मेटामॉर्फिक रॉक्स, जो किसी टाइम पर कभी कोई मान लो ज्वालामुखी फूटा हो और उसके अंदर वो ड्राई अप हो गए है ना वो रॉक्स और वो एरिया, तो इग्नियस और मेटामॉर्फिक बहुत मजबूत रॉक्स होते हैं, तो उनमें से मेटेलिक मिनरल्स निकलते हैं। और अधिकतर क्या होता है कि सेडिमेंट्री रॉक्स जो होते हैं, इन मोस्ट केसेस दे आर फॉर्म्ड व्हेन मिनरल्स इन लिक्विड्स और गैसियस फॉर्म्स आर फोर्स्ड अपवर्ड थ्रू कैविटीज़। अब इसमें क्या होता है कि मिनरल्स ऊपर ऊपर दिखाई देते हैं, दे बिकम कूल एंड सॉलिडिफाई एज दे राइज, और जैसे जैसे वो कूल होता जाता है रॉक, उसमें से ये मिनरल्स अपीयर हो जाए। एग्जाम्पल आयरन ओर इन नॉर्थ स्वीडन, कॉपर एंड निकल डिपॉजिट्स इन ओंटारियो कनाडा में निकल डिपॉजिट्स हैं, कॉपर निकल के। आयरन ओर स्वीडन में है, nickel, platinum, iron and chromites in South Africa. So they are all igneous and metamorphic rocks. They give rise to metallic minerals. In sedimentary rocks, non-metallic minerals are found. So in igneous rocks, metallic minerals are found. In sedimentary rocks, non-metallic minerals are found. They occur in beds or layers. They have been formed as a result of deposition. अब वो कैसे बन जाते हैं, पहले तो वो जा करके डिपॉजिट होगा मिनरल, फिर एक्यूमुलेशन इकट्ठा होगा, एंड कॉन्सेंट्रेशन, फिर एक ही जगह पर वो कॉन्सेंट्रेट हो जाते हैं। तो डिपोजिशन, एक्यूमुलेशन, कॉन्सेंट्रेशन। कोल एंड पेट्रोलियम, लाइमस्टोन डिपॉजिट्स ऑफ कॉकासूज रीजन ऑफ फ्रांस, है ना, यहाँ पे मैंने आपको रेफरेंस के लिए फ्रांस का मैप दिया है, ये कॉकासूज रीजन है। इस पूरे एरिया में उनके पास कोल, पेट्रोलियम, लाइमस्टोन डिपॉजिट्स हैं। एंड फॉस्फेट बेड्स ऑफ अल्जीरिया में फॉस्फेट बहुत ज़्यादा होता है, तो उसके ये एग्जाम्पल्स हैं कि इस तरह से मिनरल्स डिस्ट्रीब्यूटेड हैं। नाउ फर्दर इन द चैप्टर ऑल्सो डिस्ट्रीब्यूशन इन द वर्ल्ड हैज़ बीन गिवन, विच आई विल send you my video in the next class. Until then, see you again students. Thank you.